بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات اس ملک میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ نہ چاہتا ہو، جو اس ملک کی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے بلا امتیاز احتساب نہ چاہتا ہو. میں ان خوش فہم لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب قانون کی نظر میں ملک کا عام شہری، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس سب ایک ہوں گے. چنانچہ آج جب جنرل راحیل شریف نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور استحکام کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے، کرپشن کے خاتمے کے بغیر دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا، قوم کے تعاون سے جاری دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر دیر پا امن نہیں لا سکے گی، اور فوج احتساب کی ہر بامقصد کوشش میں بھرپور تعاون کرے گی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں اس بیان کو خوش آئند بھی سمجھتا ہوں اور جنرل صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میری درخواست ہے کہ قوم کو احتساب سے پہلے بلا امتیاز اور کرپشن دونوں کی تشریح بھی کرنا ہوگی. اگر بلا امتیاز کا مطلب صرف آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، الطاف حسین، اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان ہے، تو پھر یہ بلا امتیاز ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گا. اور اگر اس کا مطلب فوج سمیت ملک کے تمام ادارے، تمام عہدے اور تمام شخصیات ہیں، تو پھر یہ ایک نئے اور بہتر پاکستان کا آغاز ہوگا. لیکن پھر اس کے لیے قوم کو سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ ساتھ جنرل شاہیہ خان کا احتساب بھی کرنا ہوگا، جنرل ضیاء الحق اور ان کے 5 فوجی دوستوں کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا، جنرل پرویز مشرف سے ان کی غلطیوں کا اعتراف بھی کروانا ہوگا، انہیں دبئی سے لا کر عدالتوں میں بھی پیش کرنا ہوگا، اور جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کو بھی اصغر خان کیس میں گرفتار کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر احتساب تو ہو جائے گا، لیکن وہ بلا امتیاز نہیں ہوگا. اس سے ملک سے کرپشن بھی ختم نہیں ہوگی اور نسلوں کا مستقبل بھی روشن نہیں ہو سکے گا. قوم کو اسی طرح احتساب سے پہلے کرپشن کی تعریف بھی کرنا ہوگی، کیونکہ دنیا میں صرف رقم کا لین دین ہی کرپشن نہیں ہوتی، بلکہ پی سی او پر حلف اٹھانا، آئین توڑنا، ایمرجنسی لگانا، باوردی صدارت، فارن فنڈنگ، بھٹو کی طرح اندھی نیشنلائزیشن، جنرل ضیاء الحق کی طرح قوم کو دوسروں کی جنگ میں دھکیلنا، زرداری صاحب کی طرح نواز شریف کو اور نواز شریف کی طرح زرداری صاحب کو سپورٹ کرنا، دھرنے کرنا اور کروانا، چودھری صاحبان کی طرح جنرل پرویز مشرف کو 10 بار یونیفارم میں صدر منتخب کروانے کا اعلان کرنا، کنگز پارٹی بنانا، اور سول بیوروکریٹس کی طرح پوری زندگی تنخواہ اور مراد لینے کے باوجود تنکا تک دورہ نہ کرنا بھی کرپشن ہوتی ہے. اور ہم جب تک یہ کرپشن ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری نسلوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا، اس وقت تک ملک میں دیر پا امن بھی قائم نہیں ہو سکے گا. خواتین رات، سیاسی جماعت آرمی چیف کے بیان کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں اور طویل عرصے سے صحافت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. اور سینیٹر عاجز دھمرا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور کراچی میں ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ بتائیے گا مظہر صاحب کہ یہ جو بیان آیا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ پیغام ہے کسی کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرلی فوج یہ چاہتی ہے کہ کرپشن بھی ختم ہونی چاہیے پاکستان میں اور اس کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکے گی؟ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر یہ اس کا تعلق دہشت گردی سے ہے تو یہ بیان تو پھر بہت پہلے بھی آنا چاہیے تھا، بار بار آنا چاہیے تھا، کیونکہ کرپشن تو اس ملک میں کرپشن کے کوئی خاتمے کے لیے کوئی خاطر خواہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اس ملک میں. اس کی ٹائمنگ نے اس بیان کو سگنیفیکنٹ بنا دیا ہے. اگر یہ بیان آج سے 1 مہینے پہلے آتا تو شاید اس کی وہ اتنی ہائپ نہیں ہوتی، یا 1 مہینے بعد آ جاتا، یا 1 مہینے بعد آتا. تو چونکہ اس کا ایک سیکوینس نظر آتا ہے، چاہے ہو یا نہ ہو، ایک جنرل بیان دے دیا ہو، لیکن چونکہ ٹائمنگ ایسی ہے اس لیے اس کو موضوع بحث بھی لایا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک اس بیان کے کانٹینٹ کا تعلق ہے، اس پہ ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ
टेररिज्म एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है। और जिस और फौज के पास मैंडेट भी है टेररिज्म को मैंडेट भी है, खत्म करने का मैंडेट भी है, लेकिन ये कि उसको एकदम करप्शन से और एहतसाब के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, इस पर बहस हो सकती है। मेरा ख्याल है करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन 12 हमसे ये कहा गया है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। करप्शन के लिए जो इस वक्त ये बयान आया, इसकी मेरा ख्याल है बहुत हद तक जिम्मेदार खुद हुकूमत भी है। ठीक है, ताखीर है गवर्नमेंट की ताखीर 3 हफ्ते हो गए। आप एक जुडिशियल कमीशन ना बनाना जो है, जुडिशियल कमीशन बना देते, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवा देते, खत लिखते थे, चीफ जस्टिस को खत लिखते थे, उन्हें कहिए जी आप बना दें, क्या फर्क पड़ता है? होता यही है, देखिए उससे होता ये, आप इमरान खान को सामने ना रखें, आप खुर्शीद शाह को सामने ना रखें, सबसे आपका बेहतर हल ये होता, जिस तरह आपने पहले बनाया, आप लिख देते खत उनको, आप कहते कि ये इश्यूज आए हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपने एड्रेस में भी कह देते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती कि मैं चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। ठीक है। गवर्नमेंट्स हमेशा मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करती हैं, फ्लेयर अप करने वो नहीं करती कि अपोजिशन इसको फ्लेयर अप कर ले। इस वक्त अब क्या होगा, अब अगर कमीशन बनता है तो ये क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे, ये इमरान खान साहब को जाएगा, बल्कि इमरान खान से ज्यादा जनरल रहील शरीफ को जाएगा। तो चीज ये है कि मुझे मुलजम यही है गवर्नमेंट। देखिए धरने में क्या हुआ, पहले ये कि ये धरना कहां से शुरू हुआ था, धरने की नौबत कहां आई, एक ऐसा वक्त आया कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि आर्मी चीफ उनको कहना पड़ा थी कि दोनों को बुलवा के आवाज लेकर। तो अल्टीमेटली क्या जरूरत है, आप उस वक्त भी मेरे लिहाज से ये मसला बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हुआ, उस वक्त भी ये चीजें हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी फैसला करना पड़ेगा, डिफ्यूज करने की हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करनी चाहिए। अली ज़ैदी साहब की तरफ जाना। अली साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब का बयान आया कि करप्शन के ऊपर जनरल रहील शरीफ का बयान, इस पे पूरी कौम उनके साथ है, तो आप ये समझते हैं कि वाकई पूरी कौम उनके साथ है इस मरहले में, और आप भी उनके साथ हैं, और अब आर्मी को आगे जाना चाहिए और करप्शन भी खत्म करनी चाहिए पाकिस्तान से? देखिए जावेद भाई, जरा इस बयान के पहले ये बयान आया क्यों, जरा इसके ऊपर थोड़ा गौर कर लें, फिर आपको आपके सवाल का जवाब खुद शायद मिल जाएगा। इस मुल्क में स्टेट और गवर्नमेंट जो कि पैरेलल चलनी चाहिए, वो गवर्नमेंट जो है जो भी आती है वो स्टेट को चलाने के चक्कर में रहती है। अगर आप राजनपुर में पुलिस ऑपरेशन फेल हो गया, आपने आर्मी को बुला लिया। कराची में पुलिस दहशतगर्दी नहीं रोक सकी, आपने रेंजर्स को बुला लिया जो कि आर्मी के अंदर है। जब अगर नैब कोई चीज करने लगती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के कह देते हैं कि जी नैब को भी हम ये नैब के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो अगर आपने सारी चीजें फौज से ही करानी है तो वो तो बयान उन्होंने देना ही है। और आपका ये जो पॉइंट था कि शायद दहशतगर्दी को हिट करने के लिए करप्शन को हिट करना जरूरी है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अगर इस मुल्क में करप्शन ना हो तो शायद तालीम में पैसा लग जाए, जो सारा का सारा हर हुकूमत खा गई बैठ के सारे तालीम के पैसे। इस मुल्क में करप्शन ना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट है कि फौज के पास दहशतगर्दी को खत्म करने के साथ साथ करप्शन खत्म करने का भी मैंडेट है और उनको करना चाहिए, आप ये समझते हैं? फौज, देखिए मैं ये समझता हूं कि फौज को रहना चाहिए बैरक्स में, ये तो बिल्कुल एक, लेकिन जब आप वैक्यूम छोड़ देते हैं, जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो कोई ना वैक्यूम फिल करेगा ना। ये तो फ्री फॉर ऑल है इस मुल्क में, क्योंकि अगर आप इसी के ऊपर चले जाएं, सवाल ये है कि फौज करप्शन खत्म करेगी कैसे? सर उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए एक कानून चाहिए, उसके लिए आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो फौज के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे वो करप्शन खत्म कर सकेगी पाकिस्तान से? देखिए जावेद भाई, बात सारी क्या है, बात यह है कि सारों को पता है कि क्योंकि पॉलिटिशियंस इस मुल्क में चोरी करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस इस मुल्क में गलत बयानी करते हैं, अपने एसेट्स छुपाते हैं, हर चीज में करप्शन करते हैं। सारे लोग देखते हैं फौज की तरफ है कि जी फौज का नोट मिल जाएगा तो कुछ करेंगे। यहां तो हुकूमती डिपार्टमेंट जो स्टेट मशीनरी है वो भी फौज को देख रही होती है। क्यों देख रही है फौज को? क्योंकि जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो फेल करते जा रहे हैं, और उनको फेल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम सिस्टम है जिससे वो करप्शन को कंट्रोल कर सकेगी। आपका मतलब ये है ना कि अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम नहीं कर रहे और उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है या वो करप्ट हो गया सिस्टम, तो फौज के पास ऐसा सिस्टम है कि जिससे वो करप्शन को खत्म कर सकेगी। अच्छा चले, मैं ये बिल्कुल आसान कर देता हूं आपके लिए। एक तरफ राहील शरीफ साहब बयान, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना लेते हैं, नवाज शरीफ ने तो बयान दे दिया ना
नैब को हम फिक्स कर देंगे, व्हाटएवर, नैब को धमकाने का बयान एक दे दिया। दूसरी तरफ अगर राहिल शरीफ साहब बयान दे दें कि नैब को 100% सारे कुछ करने चाहिए, बिल्कुल फ्री इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, वो नैब का चीफ किसकी बैक जाएगा? आप ये बता दें किसकी बैक पे जाएगा, किसकी बात पे ज्यादा वो अमल आएगा? इसलिए कि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुके हैं, नहीं, उनके पास देखिए, मॉरल आईनी अथॉरिटी और नहीं है। आईनी और कानूनी लिहाज से एहतसाब एक आजाद इदारा है और वो पार्लियामेंट का मातहत है। वो फौज उसको नहीं उसको डायरेक्शन दे सकती, वो फौज के कहने ही कुछ कर सकता सर। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैंने तो आपसे एग्री किया, मैंने तो कहा कि फौज को बैरक्स में होना चाहिए, लेकिन वैक्यूम क्रिएट करते हैं जब भी फौज आती है ना, तो ये क्यों वैक्यूम क्रिएट करते हैं पॉलिटिशियन? जरा ये पूछेंगे वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं? जुबैर साहब, ये मुल्क के ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि ये आपकी नाहली और सुस्ती है जिसकी वजह से इस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। अगर आपने ऐलान किया था कि कमीशन बना रहे हैं तो बना देना चाहिए था। आपकी तरफ से जो ताखीर है उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो और उस वैक्यूम से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। अब आप बनाते हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब को खत लिखते हैं तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है जनरल राहिल शरीफ साहब को जाएगा, तो इतनी ताखीर करने की क्या जरूरत है? आपने शुरू में जो असेसमेंट की थी ना अपने इंट्रो में, उधर ही से मैं कुछ चीज लेना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है इस बहस में ये तो खैर पीटीआई वालों का एक जाहिर है वो कोशिश करते हैं कि जितना भी फौज की तारीफ की जाए शायद उनको हुकूमत मिल जाएगी, और हुकूमत नहीं मेरे तो सुन लें। मैं तो पहली बात ये कह रहा हूँ कि वैक्यूम और नो वैक्यूम, परफॉर्मेंस और नो परफॉर्मेंस, फौज का एक अपना रोल है। ये बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये कहना कि जी चूंकि ये 35 साल जो 4 मार्शल लॉज लगे थे वो वैक्यूम और स्पेस ही की वजह से लगे थे, और आज जब मुड़ के देखते हैं और हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं तो कोई भी मार्शल लॉ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये कहना कि वैक्यूम क्रिएट हुआ था तो वो आगे थे, भाई हॉकी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे तो फुटबॉलर्स आ जाए। एक पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पूरे अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप ऑपोजिशन जमात हैं तो आपको ये कहने, मेरा ख्याल है ये हम सबके मुफाद सर वैक्यूम तो है ना। नहीं सर, जब आप पहले तो मैंने छोटू को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जुबैर साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा सादा सा सवाल है कि ये बिला इम्तियाज से क्या मतलब है सर? बिला इम्तियाज, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हर एक अपने अपने लीडर को या अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट करता है। अभी जिंदा एग्जांपल है परवेज मुशर्रफ साहब की कि जब उन पर आर्टिकल 6 शुरू हुआ तो जगह जगह से आवाजें आई कि जी सिर्फ इन पर क्यों हो रहा है, 1947 से कोई कह रहा है 1999 से, कोई कह रहा है 1971 से, इसको क्यों नहीं किया और इसको क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ क्या मुशर्रफ साहब थे नवंबर 3 के एक्शन में, और भी तो थे। बात तो ठीक है, और भी थे उनके साथ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, तो अब हम भी वही कह रहे हैं कि बिला इम्तियाज ही होना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आज हैं या प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे या जो भी है, और खास तौर पर पाकिस्तान या आसिफ अली जरदारी साहब, या आसिफ अली जरदारी है या इमरान खान है या बिला इम्तियाज सबके साथ होना चाहिए। सबके साथ होना चाहिए। करना किसने सर? मैंने करना नहीं तो आपने सुन लें, अब जावेद चौधरी साहब सुन लें। अभी अली जैदी ने बड़ी अच्छी बात की थी। आपको पता है कि एफबीआर ने आज उनको स्टेटमेंट भी देना पड़ा एफबीआर को कि फ्रॉम फर्स्ट डे जब से ये लीक्स सामने आए हैं तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। आपने ये सवाल पूछा था कि 78 कंट्रीज, तो एफबीआर का ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो एफबीआर की है कि जी एसेट्स जो डिक्लेयर थे या नहीं। जुडिशियल कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं ये तो दिस इज अ स्टेप, वन स्टेप, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाई जिस चीज से आ गया कॉन्फिडेंस लोगों को, नहीं अभी नहीं है ना। मैंने आपको कमीशन बनाएगा तो मैं जावेद चौधरी साहब, आप तो अभी तक कमीशन नहीं बना। जावेद चौधरी साहब, आप इतनी नेगेटिव बातें ना फैलाएं। मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आप भी को पॉजिटिव काम सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट सुन लेना। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज, इंशाल्लाह ताला कौम सब सेटिस्फाइड होगी, खुश हो जाएंगे जी। अहमद साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब को खत लिख देंगे। देखिए, या तो आप बिला इम्तियाज करें या इम्तियाज बिल्ला करें। दो तरह से इत्तेफाक हो सकता है। नहीं, उनका इम्तियाज साहब, बरेली इम्तियाज साहब के तो एतराफात भी थे उनके तो बहुत। देखिए, मसला ये है कि चीज ये कि जो चीज ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ऐसा कमीशन बन जाएगा जिससे सब मुतमईन हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। और अब तो वैसे ही मुतमईन नहीं होंगे। अब तो जो है वो मेरा ख्याल है चीजें और आगे जाएंगी, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये जो 15 दिन
15 दिन में क्यों नहीं बना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ रही है एक मतलब आप क्या उनके पास है कोई जी जस्टिफिकेशन है बताएं। मजर आप लोग हिस्ट्री भूल जाते हैं। अभी लास्ट ईयर एक जुडिशियल कमीशन था, हाजिर सर्विस जजेस के तहत था, उनकी रिपोर्ट आई, उसका मजाक आज प्रेस इसलिए नहीं बना इमरान खान ने ये कहा, तो इसलिए नहीं बना रहे आप। नहीं एक सुन ले, कॉन्फिडेंस की बात है ना, तो फिर ऐलान करने की क्या सुन जरूरत ले, है? मैं ऑपोजिशन की भी बता देता हूँ। फिर इमरान ने कहा शुएब सडल से करवा लें। भाई पहले हमने ये कहा था, तो सब नाम तो आएंगे सबकी तरफ से। सर जी सुन लें, हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन एक कॉमन डिमांड तो पेश करे ना। इमरान खान इज नॉट द ऑपोजिशन ओनली, खुर्शीद शाह इज द ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो आप खुर्शीद शाह कह रहे हैं पार्लियामेंट्री, वो कह रहे हैं जजेस, हाजिर जजेस। तो अभी भी इन्होंने कहा ना पार्लियामेंट्री, अभी आपने सुन लिया ना पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पहले तो कॉमन एजेंडा तो आ जाए ना सामने। चीज ये है कि सब अलग अलग इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि आप सबको मिला नहीं रहे। गवर्नमेंट अगर पहले दिन इनिशिएटिव ले लेती और ऑपोजिशन के लीडर्स को बुलाती, उनको सामने रखती, अपने अलाइज को बुलाती और कहती ये एक इशू है, इस पर आपकी क्या राय है। आपने आज तक KPC नहीं करवाई, आपने अपोजिशन जमातों को नहीं बुलवाया, आपने किसी के पास वफ्द नहीं भेजा, आपने किसी से पूछा नहीं है, आपने सिर्फ एक आवाम, आपने कौम से खिताब किया, खिताब करने के बाद वज़ीर साहब मुल्क से बाहर चले गए, कमीशन पीछे रह गया। जमात इस्लामी से हुई है, MKM से हुई है, किस चीज पे हुई? इसी पर कमीशन पर, इसी कमीशन पर। चौधरी साहब एक बात मेरे से नहीं देखें जी, गवर्नमेंट ने जब कमीशन की जो कौम से खिताब था, उससे पहले उन्होंने ना पार्लियामेंट को इत्माद में लिया, ना तमाम अपोजिशन जमातों को इत्माद में लिया, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजों पे ज्वाइंट सेशन भी होते थे, पार्लियामेंट भी होती थी। अब आपने पार्लियामेंट को इतने बड़े तूफान में पार्लियामेंट को आपने बिल्कुल कर दिया माइनस, आपने कौम से खिताब कर दिया। अब उस कौम के खिताब में क्या ये तो बात नहीं थी ना मेंशन कि इसमें अपोजिशन का एतमाद होना जरूरी है। जो भी आपने बात की, जो भी डिसीजन लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप पहले वो तो काम कर देते ना। इसमें अपोजिशन को बीच में लाने की क्या बात थी कि वो अपोजिशन एक पिच पे नहीं है, कोई एक डिमांड नहीं है। चलो वो तो अपोजिशन की एक चीज पूछ ले, अपोजिशन डिवाइड है ना। जुबैर साहब अभी मैंने बड़ी खामोशी से लिखना चाहिए ना। यही बात है ना, आप ज्यादा बातें करती है गवर्नमेंट तो फंसती है ना, यही बात है, आप सुनते नहीं है अपोजिशन को। मसला ये है कि आप जो APC की बात की आपने, अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि इल्जाम आपके ऊपर है, इल्जाम में तो सब आते हैं कि भाई क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, उसमें हो सकता है आजिज धामरा का नाम भी आ जाए, ठीक है, ढूंढ में निकालें अगर वो जिम्मेदार है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। हम कब कह रहे हैं अलीम खान साहब का नाम आया, हमारे ऊपर अलीम खान साहब को भी बुलवाया, आप इमरान खान साहब का ये कहना है शौकत खान पे भी बुलवा ले। मैंने कहा जब नेब सिंध में एक्टिव थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, जब स्लो मोटो ले रहे थे, साहब हुकूमतों में बच्चे अच्छे लग रहे थे ना आपको। अब हम कह रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बहुत इजी। तो कराची में ऑपरेशन होता था ना, तो आप ये कहते थे कि ये किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है और वहां से शोर हो रहा है। कोई रिटायर्ड जज आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जज आपने ढूंढा जिनकी खुद मिसेज जो है वो पार्ट ऑफ मुस्लिम थी। सब एक चीज थी, जिस तरह अभी हमारे दोस्त कह रहे थे, देखिए खिताब से पहले मैं एक आप खुद इसको इस सिनेरियो को देख लें। खिताब से पहले प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फोन करते हैं। चलिए इमरान खान से, अगर हालांकि इमरान खान को फोन करने में भी कोई हर्ज नहीं था, आप जो पार्लियामेंट्री लीडर्स थे उनको फोन करते कि जी ये इशू है, इमरान खान नहीं चले सर, मैं ये कमीशन बनाना। फोन आपने किया? फोन वज़ीर साहब ने फोन किया जो उठाते? यानी एक सिर्फ सीधी सी बात थी कि आप लोगों की क्या राय है, मैं इस मसले पर, जो मेरी जात का मसला है, मैं इस पे एक कमीशन बनाने जा रहा हूं, आपकी क्या राय है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में। ये आपकी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी होती, और प्राइम मिनिस्टर की खिताब के बाद वो रिएक्शन नहीं आता जो आया, ये रिएक्शन। तो ये जो हमारियां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, ये डेमोक्रेटिकली बिहेव नहीं करते। बिल्कुल सही, ये जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत देना नहीं चाहते। ये बताइएगा ज़ैदी साहब कि ये अब्दुल अलीम खान साहब का नाम आ गया, वो आपने देखा होगा, खबर देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका नाम भी ऑफशोर कंपनीज में है और पनामा लीक्स में है। तो आप ये समझते हैं कि सर ये सारी पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता एक ही टेबल पर इकट्ठी हो रही हैं? मैं एक सवाल को ऐड कर दूं, अली ज़ैदी जवाब देने से पहले। अली आप जो जवाब देंगे उससे पहले सुन लें जरा। 9 उनके प्रॉपर्टीज हैं, 4 डिक्लेयर्ड हैं, 5 डिक्लेयर्ड नहीं है। जो 4 डिक्लेयर्ड है उसकी टोटल वैल्यू, सर सुन लेना, टोटल वैल्यू 29 लाख है। अब बताए ना, जरा स्माइल करें और जवाब दें। जी ज़ैदी साहब पूछ लिया, मैं स्माइल करके जवाब दूंगा, बड़ा जबरदस्त। नहीं
علیم خان صاحب نے کم از کم اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, گوشوارے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے؟ 9 کی نہیں کی, ڈکلیئر کیے ہوئے, اور 9 کی نہیں کی. اچھا ایک سیکنڈ, اور اگر میں جواب دے رہا ہوں نا, اور اگر نہیں کی ہوئی تو آپ حکومت میں ایکشن لینا. مطلب آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کہ آپ حکومت میں. مجھے یہی چودھری جواب تو دینا. 29 لاکھ روپے پورے 4 پراپرٹیز کی قیمت. میری اوہو زبیر بھائی, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر علیم خان آپ سمجھتے ہیں انہوں نے غلط ڈکلیئر کی ہے تو ایکشن لیں. یہی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے آپ کیا بتائیں نا, سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 29 لاکھ روپے ہوگی ان کی. ٹی وی پہ نہیں ہونا, یہ آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ حکومت ہیں, آپ شوکت خانہ کے آپ کو بہت پرابلم ہے. شوکت خانہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جب عمران خان یہ کہتے ہیں ڈیفلیکٹ نہ کریں ان کو. میں صرف آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, اپنی رائے دے دیں. میں آپ کو رائے دے رہا ہوں نا, اگر آپ بات میری رائے سن لینا, میں آپ کو رائے اپنی دے رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب اگر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس بھی فائلیں اور وہاں مت لے کے جائیں, اسمبلی کے فلوروں پہ ایک دوسرے کو کھڑے ہوئے کہیں, یہ بلیک میلروں کی بات کریں یار. علیم خان پر سوال پوچھا ہے, علی زیدی علیم خان کی بات کریں. 29 لاکھ روپے از جسٹیفائڈ. بھائی اگر علیم خان کی پہلی بات ہے, علیم خان نے فیصل واڈا کی کر لیں, جہانگیر ترین کی کر لیں, شاہ محمود قریشی کی کر لیں, عمران خان کی کر لیں. سر آپ پکڑ لیں, عمران خان کو پکڑ لیں, گرفتار کر لیں, آپ میری کریں, ایف آئی اے کو آرڈر کریں, شوکت خانہ. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلے آپ افسوس ہے آپ کو, یہ تو بڑی ریویلنگ بات آپ کر رہے ہیں, اور سیکنڈ کوسچن آپ کا بالکل جسٹیفائڈ. پہلے تو آپ ماننے تو صحیح. معافی چاہتا ہوں, ایسے زبیر صاحب آپ کی حکومت چلائی نہیں جاتی, ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسے کیسے سوال کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ مجھ سے سوال, ہمارے سے 2 ہفتے زیادی صاحب سے یہ پوچھیں, آپ نے کہا تھا بلا کام کریں یار, آپ نے کہا بلا تفریق, وہ آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ بلا تفریق پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف مسلم لیگ نواز کے تو لوگوں کی. آپ فرینزک آڈٹ بھی ہم سے کروا لیں, کمیشن بھی مجھ سے بنوا لیجیے, میں بنا ہمارے تو ایف بی آر کر رہے ہیں. اور شوکت خانم کے ایک تو فرینزک آڈٹ, ایک تو میں ساری عمر فائنانس میں رہا ہوں, میں پوچھ لوں کیا یہاں سب سے فرینزک آڈٹ ہوتا کیا ہے؟ فرینزک آڈٹ ہوتا کیا ہے؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی زیدی صاحب, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو سنی ہوگی آج, جب وہ لندن سے آ رہے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا, لیکن ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ سیاستدان ہیں, ان کو بالغ ہونا چاہیے, نابالغ ہیں, 90 کی دہائی میں واپس لے جانا چاہتے ہیں قوم کو. تو سر آپ بلوغت والی سیاست کیوں نہیں کرتے, آگے کیوں نہیں چلتے آپ؟ نہیں, آگے کس پہ چلیں, کون سے کدھر آگے چلیں؟ مجھے آپ ایک بتائیں, خان صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پی ٹی وی بند, نہیں میں جس دن انہوں نے پی ٹی وی بند کر دیا تھا اور خان صاحب کی سپیچ نہیں سنائی تھی, اس دن پورا سیشن ہی شاید نہیں دکھایا انہوں نے اسمبلی میں, ان کو پتا تھا عمران خان صاحب آنے والے ہیں, تو کیا کہا تھا, اگر آپ کو شک ہے آپ پہلے میرا آڈٹ کریں, اگر آپ شوکت خانم کے اوپر کہتے ہیں آپ شوکت خانم کو آڈٹ کریں, آپ کا کام ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. کہنے کا ان کا ڈیفنس کیا ہے؟ پہلے ان کے ایک ان کے منسٹر آ کے, اور بائی دا وے زبیر صاحب کی میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ زبیر صاحب نے سنا ہے ایک پروگرام میں کہا کہ علی زیدی کی بھی بہت ساری باہر پراپرٹی ہے. 1990 سے میں باہر بزنس کر رہا ہوں, جب میں پالیٹکس میں تھا بھی نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا. ایک سیکنڈ, آپ نے اسد عمر کا نام بھی لیا تھا اور علی زیدی کا نام بھی لیا تھا. ایک پراپرٹی میں نے زندگی میں کبھی باہر نہیں خریدی, میں وہاں کما کے یہاں لاتا ہوں, اور میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, اور اس کے باوجود 2013 میں جب الیکشن, میں نے کہا ہی نہیں بھائی, میں نے اسد کے بارے میں بھی نہیں کہا تھا. وہ جو آپ جو سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں وہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بالکل غلط چلایا گیا تھا. میں نے کہا تھا اسد عمر از اے اسٹینڈ آؤٹ کیس ان ٹرمز آف انٹیگریٹی, اور انہوں نے بیچ میں سے توڑ کے وہ کہا, میں نے کہا تھا اگر ہے, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بھائی میں نے یہ کہا تھا اگر علی زیدی کی یا اسد عمر کی پراپرٹی ہے اور وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, there is nothing wrong. آپ نے اگر نہیں سنا اصل میں, اور وہ شہزاد اقبال نے سنایا تھا پھر بعد میں. پہلی بات ہے میں کلیئر کر دوں, نہیں ہے اگر لگا لیں اور جواب دیں سر, اگر لگا لیں اور یہ فرمائیے کہ سر کہ یہ جو بلوغت کی سیاست ہے سر, وہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا مشورہ شاید پسند نہیں آیا, تو یہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی سے باہر نکلیں, آگے بڑھیں آپ.
ये 4 साल पहले तो एक प्रेसिडेंट का पेट काट के उसको खंबे में उल्टा टांग रहे थे, वो कौन सी सियासत थी? कमाल बात करते हैं, पार्लियामेंट में आते नहीं, टीवी के ऊपर मरसियां पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में आए जवाब दें, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। ये क्या तरीका है कि ब्लैकमेल कर देना, जी आपकी फाइल भी हमारे पास है, आप ज्यादा ना बोले, वो एक इनको कर रहे हैं, वो इनको कर रहे हैं। इस तरह कभी कोई हुकूमत, कोई मुल्क आगे बढ़ सका है? इतना सिंपल है, 2 सवाल के जवाब देने, सिर्फ 2 सवालों के जवाब। देखिए, डेविड कैमरॉन ने 2 सवाल के जवाब, वो अपने पार्लियामेंट में गए, उन्होंने बात की, आपने पार्लियामेंट में आकर सर जवाब दें, आप फेस क्यों नहीं करते कौम को, और पार्लियामेंट को क्यों नहीं फेस करते? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि प्राइम मिनिस्टर को मैं आपको ये भी बता दूं कि जाने से पहले 3 दिन का ट्रैवल मना किया था, और जाने के बाद भी इस वजह से वो इस्लामाबाद आए हैं। यार ये भी एक कमाल है, अनफॉर्चुनेट पीरियड। पार्लियामेंट में तो जा सकते थे। नहीं, पार्लियामेंट में लाहौर में थे। जुबैर भाई ये भी कमाल है। लाहौर, देखिए सर, वो लाहौर से तो लंदन भी गया ना, तो ट्रैवल नहीं है। नहीं, ट्रैवल किसी वजह से किया था ना। ओ भाई, अभी क्या लॉस्ट किया हुआ है, अभी क्या लॉस्ट हुआ है? हमारे हिसाब से हमारे जो चाहने वाले हैं करोड़ों, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो सबसे बड़ी जमात है, उसमें हमारी बिल्कुल सपोर्ट है, और हम बार बार पार्लियामेंट आपकी चाहने वाले नहीं है, सुन लेना, पार्लियामेंट भी है ना, वहां पे जवाब देना सर। आप क्यों वर्ड्स को प्ले करते हैं? मैंने तो तीसरी दफा ये कह रहा हूं कि हम पार्लियामेंट में जितनी जमातें हैं, हम इन सबको सेटिस्फाई करके लेके जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं, आप आज से 2 हफ्ते बाद जब बुलाएंगे तो मैं ये शो करूंगा कि ये हम इनके पीछे भाग रहे होंगे जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। ये हम नहीं कहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आज की स्टेटमेंट के बाद अगर आप भागते हैं तो ये क्रेडिट उनको जाएगा, आपको नहीं जाएगा। चले उनकी वजह से ये भाग जाएं, मतलब आ जाए ना, मतलब जो भी है। बात ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान के कौम को पता चलना चाहिए। इदारों की भी यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी बनती है। एक तो प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बहरहाल इन सारी सिचुएशन में पार्लियामेंट को एतमाद में लेना था, पार्लियामेंटी पार्टीज को एतमाद में लेना था, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात के नैब और सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े इदारे हैं हमारे पास जो खुद ब खुद सो मोटो लेते हैं। खबर आई करप्शन की, कहीं से बू आई तो नैब एक्टिव हो जाता है ना। मैंने शुरू में कहा है कि नैब एक्टिव है, मगर एक कोनों की हद तक है ना। अब जब इस मुल्क के वजीर दाखिला ये कहेंगे कि मेरे पास नेब का फाइल पड़ा हुआ है, तो नेब अंडर वजीर दाखिला की तो नहीं है ना, तो वजीर दाखिला के पास की फाइलें वजीर दाखिला के पास कैसे वो कैसे गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वजीर हुकूमत से भी और उन इदारों से भी। जब इस तरह की सिचुएशन होगी इस सारे मामलात के अंदर, फिर आप कहेंगे कि भाई अपोजिशन क्यों एक डिमांड नहीं कर रही है? भाई अपोजिशन की डिमांड है, आप महसूस करते हैं कि वैक्यूम है, और उस वैक्यूम की वजह से आर्मी चीफ को बोलना पड़ रहा है कि जब ये सब लोग काम नहीं करेंगे और ज्यादा शोर होगा, ज्यादा होगा, प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा होगा, तो जाहिर है एक स्पेस पैदा हो जाती है, उसमें आर्मी चीफ को बोलना चाहिए। देखिए, बोलना, खैर बोलने से आप किसी को रोक भी नहीं सकते, और जाहिर एक देखिए एक स्टैंड ऑफ जब नजर आता है तो फिर ये बात होती है कि एक कन्फ्रंट्रेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपको याद हो कि कुछ अरसे पहले आर्मी चीफ का एक और बयान आया था कि मुल्क खल्फशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये अगर आप इस बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, दोनों बयानों को अगर आप मिलाएं, तो वो जब उन्हें एक नजर आ रहा है कि एक अननेसेसरी जो है चीज कन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रही है, कमीशन है जो बन जाना चाहिए इतनी देर में, वो नहीं बन रहा, एक डेवलप हो रही है। एक आदमी जो है उसने कहा है कि मैं 24 तारीख को डेडलाइन दे सकता है, वो सब देख सकता है। तो उस हाइप को अवॉइड करने के लिए उन्हें ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि ऐसा बयान दिया जाए। इस बयान की उस लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से गवर्नमेंट भी एक हुकूमत ने मौका दिया ना जी, वो जाहिर है मौका ना देते तो बयान ना आता। एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में गवर्नमेंट है, और अनफॉर्चुनेटली है। मतलब मुझे नहीं लगा, अगेन मुझे इस पे ताज्जुब हुआ है। अब और बहुत सी चीजें हैं। अब आप ये कह रहे हैं जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सबके पीछे तो किसी नहीं। देखिए, नैब के हवाले से अगर आपको याद होगा, नैब ने जरा से केसेस थोड़े से वो किए थे, तो परवेज रशीद साहब का बयान नैब के खिलाफ आ गया, शहबाज शरीफ साहब का बयान नैब के खिलाफ आ गया। मतलब आप अपने ही इदारे के खिलाफ गवर्नमेंट कैसे स्टेटमेंट दे सकती है? आप अपने ही इंस्टीट्यूशन के खिलाफ स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? वक्त खत्म हो गया मदद साहब, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि गवर्नमेंट अपने इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट भी देती है और अपोजिशन की तरह मुतालबात भी कर रही है। पता नहीं, मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ कि किससे मुतालबा कर रहे हैं, किसको बुलवा रहे हैं कि आप मामलात आगे ठीक करें। अल्लाह ताला आप और खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। खुदा हाफिज।